قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور رفقا کی شہادت کا دن یوم عاشور آج مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ 10 محرم یوم عاشور کو حضرت امام حسین نے اپنے اہل خانہ اور وفادار ساتھیوں کے ہمراہ یزید کے سامنے کلمہ حق بلند کیا۔ یہ دن ان کی لازوال قربانی، صبر اور استقامت کی یادگار ہے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر کوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے عظیم جانثاروں کی لازوال قربانیوں کی یاد میں شہر شہر مجالس اور جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ لاہور، کراچی، کوئٹہ سمیت بڑے ماتمی جلوس مقررہ راستوں پر رواں ہیں۔ نماز ظہرین کے بعد جلوس دوبارہ اپنی منزل کی جانب چل پڑے۔ چھوٹے بڑے شہروں میں عزادار اپنے اپنے انداز میں شہدائے کربلا سے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ مرکزی جلوسوں کی سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ جلوسوں کے راستوں پر سنبیلوں، لنگر اور نیاز کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مختلف شہروں سے جلوسوں کی تازہ ترین صورتحال جانیں گے اپنے نمائندگان سے۔ لاہور سے عمر دراز اور حافظ محبوب، کراچی سے عبدالولی، راولپنڈی سے احتشام علی، فیصل آباد سے وقت شیراز، کوئٹہ سے حنیف بازئی، جبکہ حیدرآباد سے بیورو چیف ناصر شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہاولپور سے ہمارے ساتھ ہوں گے بشیر، ملتان سے حمزہ بلوچ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے رخ کریں گے لاہور کا، عمر دراز سے جانتے ہیں۔ عمر بتائے گا دن بھر کیسا رہا، یوم عاشور کے موقع پر کس طرح سے لوگوں نے عقیدت کا اظہار کیا؟ بالکل 10 محرم الحرام کے سلسلے میں لاہور میں بھی پورے شہر میں مختلف مقامات پر لنگر و نیاز کا سلسلہ جاری ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں لٹن روڈ کے علاقے میں اور یہاں پہ سالانہ دسترخوان جو ہے وہ لگایا جاتا ہے 10 محرم کے مناسبت سے۔ یہاں پہ جو شہری ہیں ان کو باعزت طریقے سے جو ہے وہ دسترخوان پر بٹھا کر جو ہے وہ لنگر کروایا جاتا ہے۔ میرے ساتھ اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں اور ابھی ان کو جو ہے وہ لنگر ملے گا اور یہ باعزت طریقے سے ان کو کھلایا جائے گا۔ منتظمین میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر کیا کہنا چاہیں گے؟ پیارے نبی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیارے نواسے حسن حسین جنہوں نے شہدۂ کربلا میں اپنی جان کے نذرانے دیے، دین اسلام کو زندہ کیا، ان کی یاد میں یہ حسینی لنگر ہم کرتے ہیں۔ کم و بیش ہمیں 15 سے 20 سال ہو گئے ہیں۔ یہ حسینی لنگر مسلسل 9ویں اور 10ویں کو ہم اس کو شروع کرتے ہیں اور تقریباً ہماری کو 300، 400، 500، 600 دیگ جتنی بھی ہماری مسلسل یہ لگتی چلی جاتی ہے، ہم پکاتے چلے جاتے ہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ منتظمین کا یہ کہنا ہے کہ یہ عرصہ دراز سے جو ہیں وہ لنگر کا اہتمام کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پر شہریوں کو بٹھا کر یہاں پہ لنگر بھی کروا رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ پیک کروا کر ان کو گھروں تک بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ بھی اس لنگر سے جو ہے وہ مستفید ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، عمر دراز ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ لاہور سے ہی حافظ محبوب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی مزید بات کریں گے۔ حافظ محبوب، آپ آگاہ کیجیے گا، اس وقت جس جگہ پر آپ موجود ہیں وہاں پہ بھی لنگر اور نیاز کا سلسلہ جاری ہے؟ 10ویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس جو ہے وہ اپنے مقررہ راستوں کی جانب گامزن، آپ سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ کشمیری گیٹ کے سے جو ہے وہ گزرتا ہوا بھاٹی گیٹ جو ہے وہ پہنچے گا اور بھاٹی گیٹ سے سیدھا کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ اس وقت ہم موجود ہیں کربلا گام شاہ کے باہر۔ میرا کیمرہ مین شاید محمود دکھا سکے تو یہاں پہ جو ہے کربلا گام شاہ کے باہر کے مناظر ہیں جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں عزاداران حسین جو ہے پہنچے، جنگلے لگا کر مکمل طور پر راستوں کو بند کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیکورٹی کے انتہائی اقدامات کیے گئے ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ جلوس کے راستوں پر تعینات ہے۔ پنجاب پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی بڑی تعداد موجود ہے جو کہ یہاں پہ سیکورٹی کے اقدامات دیکھ رہے ہیں۔ دوسری جانب عزاداران جو ہے وہ بڑی تعداد میں کربلا گام شاہ پہنچ چکے ہیں۔ آپ سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ یہ جلوس بھاٹی گیٹ سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پہنچ کے اختتام پذیر ہوگا جہاں پر شام غریبہ برپا ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، کراچی کا رخ کرتے ہیں۔ عبدالولی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالولی بتائے گا کراچی میں جو مرکزی جلوس تھا وہ اختتام پذیر ہو گیا ہے، دن بھر احوال کیا رہا؟ جی بالکل، کراچی میں مرکزی جلوس کے شرکاء اب اپنے اختتام پذیر کی طرف ہیں اور حسینیہ ایرانیہ کھرادر امام بارگاہ میں اس وقت جو شرکاء ہیں وہ داخل ہو رہے ہیں۔ کیمرہ مین میرے رائٹ سائڈ پہ آپ کو باقر رضا یہ مناظر دکھا رہے ہیں کہ یہ جو شرکاء ہیں باقاعدہ طور پر حسینیہ ایرانیہ کھرادر امام بارگاہ میں اس وقت داخل ہو رہے ہیں اور دیگر بھی جو شرکاء ہیں وہ اب آہستہ آہستہ
जैसे जैसे मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे उनका मंजिल करीब होता है, और फिर ये राइट वो डाइवर्जन है जहाँ से वो हुसैनिया ईरानिया खारादार इमाम बारगाह में दाखिल होता है। और हम ये देख रहे हैं कि जुलूस के जो शुरका हैं वो अपने हाथों में आलम उठाए अपने इख्तितामी जो पॉइंट है उसकी तरफ रवा दवा है। जी ठीक है, अब्दुल वली हमारे साथ मौजूद रहिएगा। रुक करेंगे रावलपिंडी का, जहां से एहतिशाम अली हमारे साथ हैं। एहतिशाम, आप आगाह कीजिएगा, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप इस वक्त? मुल्क भर की तरह रावलपिंडी में भी यौम आशूरा इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। अज़ादारों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि अज़ादारी में मसरूफ़ और ज़ंजीर ज़नी में मसरूफ़ है, जबकि अकीदतमंद जुलजना, ताज़िया और जो अलम है उनकी ज़ियारत में मसरूफ़ है। हमारे साथ भी यहाँ पर माजी मौजूद है, इनसे पूछते हैं ये क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। जी, इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि रावलपिंडी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के साथ साथ रेंजर्स की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जबकि पाक फ़ौज ऑन कॉल है। इसी के साथ साथ दीगर फोर्सेस भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी ठीक है एहतिशाम। वकास शिराज हमारे साथ फैसलाबाद से मौजूद है, उनसे जानेंगे। वकास, बताइएगा कि जुलूस के रास्तों के ऊपर तिब्बी इमदाद के भी कुछ इक़दाम किए गए हैं, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, यौम अशूर के मौका पर अहले बैत से मोहब्बत का हर एक का अपना ही अंदाज़ होता है। मुखिर आज़ाद की जानब से जो है फैसलाबाद के ताजर हैं की जानब से एक वसी पैमाने पर जो लंगर न्याज का एहतमाम किया गया। सुबह से जो है ये शाम तक लंगर का एहतमाम किया जाता है, जिसमें हज़ारों अफराद को जो है मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें, जिसमें चावल है, कीमा है, उसके अलावा चिकन का सालन है, उसके अलावा जो बिरयानी में जो है मुख्तलिफ दिगर ऐसी चीज़ें हैं जो खिलाई जाती हैं और स्वाब दाराइन हासिल किया जाता है। इस वक्त मेरे साथ हम मुखिर आज़ाद मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शोहदा करबला की याद में हम लोग ये लंगर का इंतज़ाम करते हैं, नस्लों से करते आ रहे हैं। हमारे दादा दादी, फिर वालदैन, अब हम भाई साहब मिलकर ये लंगर का इंतज़ाम करते हैं। ये शोहदा करबला की याद में है। उसी तौर पर लंगर न्याज का एहतमाम किया जाता है और नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है, जिसकी वजह से आज भी इसका जो ख़ुसूसी एहतमाम किया जा रहा है और बड़ी तादाद में यहाँ पर अज़ादार हुसैन वो यहाँ से लंगर खाकर मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जी ठीक है वकास, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कोयटा से हनीफ बसाई हमारे साथ हैं। हनीफ, आप आगाह कीजिएगा, यौम अशूर के मौके पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए और अज़ादारों के लिए क्या तिब्बी इमदाद के इक़दाम भी किए गए हैं? कोयटा में सुबह 8 बजे बरामद होने वाला यौम आशूरा का मरकजी जुलूस जो है वो इस वक्त अपने इख्तितामी पॉइंट की तरफ रवां दवा है, जहां बलूचिस्तान पुलिस जो है आज़ादारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही। तो वहीं पर पहली बार बलूचिस्तान पुलिस में जो है वो फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। इस वक्त मैं इसी मेडिकल में मौजूद हूँ, मेरे साथ डॉक्टर कसीम मौजूद है। उनसे जाते डॉक्टर साहब ये बता दें अब तक कितने, और इस कैंप का मकसद क्या है, कितने मरीज चेक किए हैं? दरअसल हमारा कैंप का मकसद ये था कि हम लोग आज़ादारान को प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें, और हमारे ने आज सिर्फ इन कैंप में आज हम लोगों ने 200 से मरीज़ ज़्यादा यहाँ पर ट्रीट किए, जो हीट स्ट्रोक की वजह से आए, कोई डायरिया, लूज मोशन और मुख्तलिफ रीजन्स की वजह से हमारे पास आए थे, और उसे हम लोगों ने प्रॉपरली ट्रीट कर लिया। और हमारा यही मकसद रहेगा आइंदा भी कि हम लोग प्रॉपरली पेशेंट को ट्रीट करें। आज़ादारान को जो भी जुलूस होगा या कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी इंशाल्लाह हम लोग कैंप प्रोवाइड कराएंगे। जी बिल्कुल, जैसे आपने डॉक्टर कसीम साहब की बात सुनी, उनका कहना है कि इनका मकसद जो है आज़ादारों को जो है वो तभी इमदाद जो है वो फराहम करना है। जी ठीक है हनीफ, मरी का रुख करते हैं। ताज बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। ताज, बताइएगा मरी में किस तरह के इंतजाम किए गए यौम आशूर के मौके पर? मुल्क भर की तरह मलका कोसार मरी में भी आज 10वीं मुहर्रम के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो है वो इस वक्त तकरीबात का सिलसिला जारी है। बात करूं मैं, इस वक्त मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर खुद मौजूद है, उनसे जानते हैं। पुलिस कवर, सिक्योरिटी कवर, हमारा ट्रैफिक, इसके अलावा 1122, सुथरा पंजाब, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सारे महकमा जात सब ने इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी एफर्ट की और अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन रिपोर्ट नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सीएम पंजाब की स्पेशल डायरेक्शंस पे हमने सबील का भी अरेंजमेंट किया है, फिक्स बिलें भी इसमें शामिल हैं और हमारी मोबाइल सबीलें भी शामिल हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त जो है वो पुलिस के स्नाइपर जो है वो हाई रेज बिल्डिंग के ऊपर तैनात हैं, जगह जगह पे सबीलें लगी हुई हैं और खाने का एहतमाम किया गया है। और यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम हैं। हर आने वाले की चेकिंग के बाद उसको जो है वो जुलूस में शामिल होने की इजाज़त दी जा रही है। जी दी जा रही है। ठीक है, ताज बुखारी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुक करेंगे हैदराबाद का, जहाँ से ब्यूरो चीफ नासिर शेख हमारे साथ है। नासिर, आप आगाह कीजिएगा, हैदराबाद में यौम आशूर के मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर इस वक्त रवाना हुआ है। बाद में यौम आशूर का मरकजी मातम जुलूस
जो कि कदमगाह मौला अली से बरामद हुआ और करबला दादन शाह पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। ये जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस में जो है बड़ी तादाद में अज़ादारान शामिल हैं जो कि सीना कोबी और नोहा खानी कर रहे हैं। जुलूस में जो है वो शबी ज़ुलजना, इसके अलावा जो है वो डोला और दीगर तबरुकात भी हैं और जुलूस के अंदर ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल है जो कि जो है ख़ुद भी नुआ खानी कर रही हैं। इसके साथ ही सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से जो है पुलिस और रेंजर्स को तैनात किया गया है। 4000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार जो है वो ड्यूटी दे रहे हैं। स्टेशन रोड से रवा दवा ये जुलूस जो है उसमें जो है न सिर्फ ये कि रास्ते में लंगर और न्याज का एहतमाम किया गया है बल्कि शहरियों की जानिब से जुलूस में जो तबरुकात हैं उन पे भी मन्नतें मांगी जा रही हैं। जी ठीक है नासिर, साथ ही रहेगा। बहावलपुर का रुख करते हैं। मुजाहिद बशीर ने हमें ज्वाइन किया है। मुजाहिद बताइएगा, बहावलपुर में जो मरकज़ी जुलूस है उसकी क्या अपडेट्स हैं, क्या वो इख्तिताम पजीर हो गया? बिल्कुल, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह बहावलपुर में मुहर्रम हराम का जुलूस बड़ी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इस टाइम मैं चिक्कावाला चौक पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरी बैक साइड पर अगर आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सकते हैं, मेरी बैक साइड पर एक ताज़िए निकाले जा रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो अज़दार मौजूद है जो जंजीर जनी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो बात की जाए बहावलपुर सिक्योरिटी के इंतजाम की, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। जिला बाहर में 2445 पुलिस एहलकारान यहाँ पर ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अगर जुलूसों की बात की जाए, कैटेगरी ए के बहावलपुर जिला में 5 जुलूस निकाले जा रहे हैं, कैटेगरी बी के भी 5 जुलूस यहाँ से निकाले जा रहे हैं। साथ अगर 1122 की बात करें, रेस्क्यू 1122 ने अब तक 245 अहल जो यहाँ पर अज़दार थे जंजीर जनी कर रहे थे, वो जख्मी होने की वजह से उनको यहाँ पर तिबी इमदाद दी है। जबकि 7 जो ज़्यादा जख्मी होने वाले जो अज़दार थे उनको बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। जबकि DPO बहावलपुर का कहना है कि बहावलपुर जिला में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। तमाम जो ज़ायरीन हैं, जो अक़ीदतमंद हैं, जो यहाँ पर आने वाले अज़दार हैं, उनको सख्त सिक्योरिटी के मराहल से गुजरने के बाद इस जुलूस में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। जी ठीक है, वजाहत हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मुल्तान से हमजा बलोच हमारे साथ है। हमजा, आप आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या मनाज़िर देख रहे हैं? यौम अशूरा के मौके पर मुल्तान के मुख्तलिफ मकामात से 116 के करीब जो जुलूस हैं वो बरामद हुए, जबकि 130 के करीब मजालिस का एहतमाम किया गया है। इस वक्त मुल्तान में जो 116 के करीब छोटे बड़े मातमी जुलूस हैं वो अपने रवायती रास्तों पर गामजन हैं। दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर बैरियर्स लगाकर बंद कर दिया गया था। पुलिस एहलकारों की बात की जाए तो पुलिस एहलकार 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो ड्यूटीज़ पर मामूर रहे। मुल्तान का सबसे बड़ा मरकजी मातमी जुलूस जो है हिरा हैदरिया का, वो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ अब मगरिब के बाद जो है हज़रत शाह शम्स तब्रेज़ पर इख्तिताम पजीर होगा और उसके बाद मजालिस का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। जी ठीक है, मुख्तलिफ शहरों से जुलूसों की ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। लाहौर से उमर दराज, हाफिज़ महबूब, कराची से अब्दुल वली, रावलपिंडी से एहतिशाम अली, फैसलाबाद से वकास शराज, कोयटा से हनीफ वज़ाई, मरी से ताज बुखारी, हैदराबाद से ब्यूरो चीफ नासिर शेख हमें अपडेट कर रहे थे, भावलपुर से वजाहत बशीर और मुल्तान से हमजा बलोच हमें अपडेट कर रहे थे। और इस वक्त क्या सूरत हाल है 10वें मुहर्रमुल हराम के हवाले से, क्या इंतजाम किए गए हैं, मेडिकल कैंप्स कितने लगाए गए हैं, जुलूस किन रवायती रास्तों से होता हुआ इक़्तिदाम पज़ीर होगा, तमाम तर सूरत हाल से मुतालिक हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़े बात करें। वेनेज़ुएला में क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 235 हो गई, जबकि 4300 अफराद ज़ख्मी हैं। मलबे तले दबे लोगों का निकालने के लिए अमल जारी है। वेनेज़ुएला में गुज़िश्ता रोज़ आने वाले 7.1 और 7.5 शिद्दत के 2 ज़लज़लों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। शदीद ज़लज़लों के बायस मुतअद्दिद रिहायशी और कमर्शल इमारतें ज़मी बोस हो गई। ज़लज़ले के बाद मुल्क भर में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी हैं। रज़ाकार मलबे तले फंसे अफराद को निकालने के लिए कोशा हैं। अब तक 235 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि दर्जनों जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। ज़लज़ले के बायस स्कूल और ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। वेनेज़ुएला का मरकजी बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट शदीद नुकसान के बायस बंद कर दिया गया है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से तबाही और नुकसान पर इजहार अफसोस किया है और वेनेज़ुएला हुकूमत, अवाम और मुतासरीन से इजहार हमदर्दी किया है। फिलिपाइन में ज़लज़ले के झटके रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.7 रिकॉर्ड की गई। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जजीरे मिंडानाओ में आने वाले ज़लज़ले की गहराई 41.4 किलोमीटर थी। मुतासरा इलाकों में 1,38,000 से ज़ायद अफराद मौजूद होने का खदशा है। सुनामी का खतरा रिपोर्ट नहीं किया गया। नाज़रीन, बुलेटिन में वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन, आपको बताएं ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तानी मीडिया के मुस्बत किरदार पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी का पाकिस्तान मीडिया को खराज तहसीन। कहा, ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दौरान मीडिया ने मुस्बत और तामीरी किरदार अदा किया। पाकिस्तानी मीडिया ने जिम्मेदारी और प्रोफेशनलिज्म का सबूत दिया। Let me also wish to acknowledge the responsible and constructive role played by you, Pakistan's media, throughout this process. Pakistan's media demonstrated professionalism and maturity by respecting the strict requirements of confidentiality, discretion, and trust that are indispensable to any credible facilitator or mediation effort. The media, you were very patient. You restrained yourself and avoided speculation and sensationalism, which contributed positively to an environment conducive to dialogue and confidence-building measure. This responsible conduct is both commendable and reflective of media's broader commitment to serving the national interest while upholding the highest professional standards. And we hope that as the negotiation process moves forward, we will get cooperation and support from our distinguished media colleagues as well. राबना हुर्मत से मुतल्लिक ईरान और अमरीका के दरमियान उलझते मामलात सुलझाने की कोशिशें तेज़। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने बरतानवी न्यूज़ वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान पासदारानी इनकलाब से बराह रास्त राबतों पर इत्तफाक हो गया है। पासदारानी इनकलाब और अमरीकी सेंटकॉम हुक्काम की जल्द दोहा में मुलाकात मुतवक्के है। मुलाकात का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म करना है। मुख्तलिफ मौशी मरात ताउन पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी ईरान के साथ ऐसे नए राबते कायम किए जो पहले नहीं थे। इन राबतों में ईरानी पासदारानी इनकलाब के साथ राबते भी शामिल हैं। ईरान को जोहरी हथियारों की इजाज़त नहीं दे सकते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर आप ईरान को एटमी हथियार देंगे तो वो इसे पहले ही घंटे में इस्तेमाल करेगा। ज़राई शोबे में नई जिद्दत लाएंगे। ईरान अब मुआहदे के लिए बेताब है। ईरानी फंड से गंदम, सोयाबीन और मकई खरीदने का ऐलान। सदर ट्रंप ने ज़राअत से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मर्ग माँ हयात माँ अस्त, हमारी मौत ही हमारी ज़िंदगी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का यौम आशूर पर पैगाम। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को सलाम अक़ीदत व एहतराम। शहदाए करबला की अज़ीमुश्शान क़ुरबानियों, बीबी ज़ैनब के सब्र व हौसले को सलाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना था, शहदाए करबला और अहले बैत से मोहब्बत हर मुसलमान की अक़ीदे का हिस्सा है। वाक़ई करबला इंसानियत के लिए इंसाफ की राह पर चलने की तहरीक है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने सियासी इख्तिलाफ़ियात का बेहतरीन अब्दी मंशूर पेश किया। इमाम हुसैन का नाम हर मज़लूम के लिए जुर्रत और शुजाअत का इस्तिआरा है। वाक़ई करबला आम जंगी दास्तान नहीं बल्कि रूहानी इस्तेकामत का रूह परवर मंजरनामा है। आज हमें इमाम हुसैन की रोशन तालीमात के मुताबिक अमल पैरा होने का अदा करना है। इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत हर दौर में मज़लूम और मजबूर इंसानों को दर्स अमल अता करती रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की यौम आशूर पर सरगोदा आमद। सूबाई वज़ीर ने मरकज़ी जुलूसों के रूट्स का दौरा किया और सिक्योरिटी, तिब्बी इमदाद, ट्रैफिक और रेस्क्यू इंतज़ामात का तफसीली जायज़ा लिया। इस हवाले से आपको बताएं, सूबाई वज़ीर ने शहर के 3 मुख्तलिफ मकामात से बरामद होने वाले जुलूसों के इंतज़ामात का मुआयना किया और अमन कमेटी के अरकान और जुलूस मुंतज़मीन से मुलाकात भी की। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, अज़ादारों के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत के लिए तमाम मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट हैं। उन्होंने जुलूसों के रास्तों पर कायम सबीलों, पानी के छिड़काव, सफाई के इंतज़ामात, फील्ड हस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील सर्विसेज का भी जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर सेहत ने अज़ादारों में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से लंगर भी तकसीम किया। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का खुद मुहर्रम इंतज़ामात की मुसलसल मॉनिटरिंग कर रही हैं, जबकि अमन व अमान के क़याम के लिए हुकूमत तमाम दस्तयाब वसाइल बरोकार ला रही है। यौम आशूर पर पंजाब पुलिस हाई अलर्ट, रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस जारी। आईजी पंजाब अब्दुल करीम का सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मरकजी कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग रूम्स का दौरा। आईजी पंजाब ने मॉनिटरिंग रूम से मरकजी और हसास जुलूसों के सिक्योरिटी इंतजामात सरगर्मियों का जायजा लिया। आईजी पंजाब ने सेफ सिटीज़ लिंक के जरिए लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में मरकजी अज़ादारी जुलूसों की लाइव मॉनिटरिंग का मुआयना किया। AIG ऑपरेशन जाहिद नवाज मरवत ने आईजी पंजाब को सिक्योरिटी इंतजामात बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। एडिशनल आईजी ऑपरेशंस पंजाब मोहम्मद अली
AIG लॉजिस्टिक्स फैसल शहजाद, AIG एडमिन एंड सिक्योरिटी काजी फारूक सुल्तान समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। IG पंजाब अब्दुल करीम का कहना था, योम आशूर के तमाम मरकजी अज़ादारी जुलूस पंजाब पुलिस के हिफाजती हिसार में पुरअमन तौर पर रवा दवा हैं। पंजाब पुलिस सूबे भर में मजालिस और अज़ादारी जुलूसों के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बना रही है। नवासे रसूल, जिगर गोशा बतूल, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके रुफ़का की कुर्बानियों की याद में तुलबा ने मुल्फ़िर शाहकार तख्लीक कर दिया। चिन्योट के नवाही इलाके रजवा सादात के तुलबा ने मदीना मनव्वरा से करबला और फिर शाम तक के सफ़र की मुकम्मल नक्शा कशी की है। देखिए चिन्योट से नासिर अली चौधरी की ये रिपोर्ट। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके बावफा रुफ़ा की करबला में 1400 साल कबल दी गई कुर्बानियों की याद में तुलबा ने अपने तैयार करदा मॉडल में मदीना मुनव्वरा से करबला और फिर शाम तक के सफर की मुकम्मल मंजर कशी की है। इस मंजर कशी का बेसिकली जो मकसद है कि जो 1400 साल पहले नवासा रसूल और उसके रुफ़का जो मैदान करबला में शहीद हुए, तो हम उसकी मंजर कशी के ज़रिए ये लोगों को 21वीं सदी के लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि इस तरह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस तरह शहीद हुए। एक तालिब इल्म का कहना है, हमारा मकसद इस नक्शे के जरिए नई नस्ल को ये समझाना है कि आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की बका के लिए कितना पुरसोबर और तवील सफर तय किया, ताकि लोग इस कुर्बानी को न सिर्फ सुने बल्कि महसूस भी कर सकें। इस नक्शे में कमाल महारत से मक्का मुकरमा की मनाजिर, मैदान करबला की तपिश और फिर असीरान अहले बैत के कूफा और शाम के मसाइब के तमाम रास्तों को वाज़ेह किया गया है। देखने वाले ज़ाहिरीन की आंखें अश्कबार हो जाती हैं। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ यादगार इमाम हुसैन आज जिंदा कर देती है। इश्क अकीदत से तैयार करता इस नक्शे को देखने के लिए दूर दूर से लोग रजुआ सादात का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर ये मंजर कशी बहुत अच्छी है, ये हमें करबला और इमाम हुसैन की याद दिलाती है। तुलबा की ये काविश है कि दुनिया तक इमाम आली मुकाम से मोहब्बत का एक अनोखा सबूत रहे। कैमरा टीम के हमरा नासिर अली चौधरी, न्यू न्यूज़ चनियोट। दूसरी जानिब भारत की जानिब से आबी वसाइल को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी, दरियाए चनाब पर भारतीय डैमों की तामीर संगीन कानूनी खिलाफ वर्जी। मुमताज़ कानूनदान अहमद बिलाल सूफी का आर्टिकल, कहा भारतीय वज़रा के बयान से आबी मनसूबों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के मकासद अयां हो रहे हैं। आर्टिकल के मुताबिक सिंतास मुआहिदा जनूबी एशिया के आबी इस्तेहकाम की बुनियाद है। आबी तनाज़ात का हल आलमी कवानीन के तहत होना चाहिए। पानी के बहाव को महदूद करने के बयान से इलाकाई कशीदगी में इजाफा होगा। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली ने नए आलमी कानूनी मुबाहिस को जन्म दिया है। अहमद बिलाल सूफी के मुताबिक इससे जंगी मकासद के लिए आबी तनसीबात का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ खत्म हो सकता है। मुमताज़ माहिर कानून का कहना है, दरियाए चनाब पर भारतीय मनसूबे सिफारती और कानूनी चैलेंजेस से दो चार होंगे। भारत दरियाए चनाब पर आलमी कवानीन के खिलाफ बड़े पिन बिजली मनसूबों पर तेजी से काम कर रहा है। खाली ज़ेर तामीर डैम को मुकम्मल डैम जैसा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं हो सकता। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।